I want to teach you obedience through the Father's heart. मैं पिता के दिल की ओर से आपको आज्ञाकारिता सिखाना So चाहता you don't see obedience as a burden but a delight. हूं, ताकि आप आज्ञाकारिता को बोझ की तरह नहीं लेकिन आनंद की तरह देख सको। Ready? Let's Yeah. go to John 14:15. Let's see what Jesus said. He said, if you, I'm reading from the Amplified Classic Version, and he said, if you really love me, say really. Yeah, that's important. Right? If you really love me, you'll do what? You will keep or obey my commandments. और एम्पलीफाइड वर्जन में ऐसा लिखा है, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को रखोगे, उनका पालन करोगे। Jesus didn't say, if you obey me, then you love me. He isn't saying that. यीशु ये नहीं कह रहा अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो तब तुम मुझसे प्यार He करते हो। said, if you love me, वो कह रहे हैं अगर तुम मुझसे the प्यार करते हो fruit of that love will be that it will produce an automatic obedience to what I tell you. तो मुझसे प्यार करने का जो फल होगा कि खुद ब खुद अपने अंदर से आज्ञाकारिता पैदा होगी तुम्हारे। So write it down if you are writing it down. Genuine obedience is the fruit of loving Jesus. अगर लिख रहे हो तो लिख लो कि सच्ची आज्ञाकारिता परमेश्वर यीशु से प्यार करने का फल है। Genuine obedience is the fruit of loving Jesus. सच्ची आज्ञाकारिता यीशु से प्यार करने का फल है। You know, one day I was talking to the Father, एक दिन मैं पिता से बात कर रहा था and I was asking the Father, Father, what? Give me like a key. What should I teach the church that they can pray, they can live a holy life, they can become generous? I mean, like, give me one key. और मैं पिता से कह रहा था, पिता मुझे वो कुंजी दो कि क्या वो एक कुंजी है जो मैं कलीसिया को दूं तो वो आपकी बातें मानने लगे, उदार हो, जीवन में बढ़े, एक चाबी दे दो। And he said, that's love. और पिता ने कहा वो If प्रेम they है। love me, अगर वो मुझसे प्रेम they करते would हैं want to talk to me. तो मुझसे बात करना If चाहेंगे, they love me, मुझसे प्यार करते हैं, they will live a life that pleases me. एक ऐसी जिंदगी जिएंगे जिससे मैं खुश होता हूँ। If they love me, अगर मुझसे प्यार करते they हैं will become generous. तो वो उदार बन If जाएंगे। they love me, अगर वो मुझसे प्यार they करते will love हैं my house. तो मेरे घर से प्यार If they करेंगे। love me, अगर वो मुझसे they प्यार will love करते my other sons and हैं मेरे daughters. दूसरे बेटे बेटियों को भी The प्यार करेंगे। Bible says, if you walk in love, you fulfill the entire law. क्योंकि बाइबल कहती है अगर तुम प्रेम में चलो तो पूरी व्यवस्था को पूरा करते हो। Isn't that awesome? क्या ये अद्भुत You नहीं? don't have to remember 613 commandments. आपको 613 आज्ञा याद नहीं करनी पड़ेंगी, Just one. एक ही, Walk in love. प्रेम में चलो And you fulfill the law. और आप पूरे व्यवस्था को पूरा करते Isn't हो। that awesome? क्या अद्भुत All नहीं that है? we need to check is, हमें बस इतना देखना है, परखना है, am I walking in the love that has already been given to me? क्या मैं उस प्रेम में चल रहा हूँ जो मुझे पहले ही दिया जा चुका है? I just need to walk it out. मुझे बस उसको उसमें चलना है अपने जीवन में। I already have been given. The love, Father has poured His love in my heart. पिता ने पहले ही अपना प्रेम मेरे दिल में उंडेल दिया, भर दिया है। Obedience is the fruit of loving Jesus. आज्ञाकारिता यीशु से प्यार करने का फल है। Amen? But let me also tell you something. पर मैं ये भी कहूँगा, Our love is not only experienced through affections प्रेम केवल लगाव के द्वारा ही महसूस नहीं किया जाता and emotions. या भावनाओं के द्वारा ही नहीं। I can come to church and I can cry every time. Oh, Jesus. मैं जब कभी चर्च आऊँ रो सकता हूँ, ओ यीशु ये। And I cry in God's presence. मैं रोता हूँ प्रभु की उपस्थिति में। I'm a baby when the presence of God comes. मैं एक बच्चे की तरह होता हूँ प्रभु की उपस्थिति You में। know that. आपको पता है, I have to pray. I don't want to cry, Lord, in front of people. मुझे प्रार्थना करनी पड़ती है, प्रभु मैं लोगों के सामने रोना नहीं चाहता। I go into my prayer closet and I cry because knowing how good He is. अपने प्रार्थना कक्ष में जाकर मैं रोता हूँ क्योंकि ये जानता हूँ कितना But भला है। imagine you come to church Sunday after Sunday and all that you do is cry पर आप संडे दर संडे चर्च आते हैं और सिर्फ रोते हैं and you sing, I love you, और कहते हैं यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, But then लेकिन फिर you don't obey what Jesus says. आप वो नहीं करते जो यीशु करने को कहते हैं। You are just trying to show affection. तो आप लगाव दिखा रहे हो। Love is expressed through obedience. आप अपना लगाव व्यक्त कर रहे हो लेकिन प्रेम
दिखाया जाता है आज्ञा मानने के द्वारा। Amen. Hallelujah. Love is expressed through obedience. प्रेम व्यक्त किया जाता है आज्ञाकारिता के द्वारा या बातें मानने के द्वारा। Imagine there is a couple newlywed and they both send each other messages. I miss you. कल्पना करें I कपल love you. जिसकी हाल ही में शादी हुई, एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ, मिस कर रहा हूँ तुम्हें। All of that is awesome. वो सब अच्छा है। Affection is very important. लगाव व्यक्त Affection करना is अच्छा a very important part of love, but that's not the entire picture of है। love. लगाव दिखाना प्रेम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर वो सारी तस्वीर नहीं है प्रेम की। Love is sacrificial. प्रेम जो है वो God didn't say, बलिदान "Oh, I स्वरूप love है। you guys." The Bible says God demonstrated His love when Jesus went on the cross. That is how love looks like. प्रेम बलिदान स्वरूप है। परमेश्वर पिता ने सिर्फ ये नहीं कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसने प्रेम किया और अपने इकलौते बेटे को बलिदान स्वरूप दे दिया। Oh God, I love you so much. ओ प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, But you know, Lord, लेकिन पता है प्रभु अब सर्दियाँ आने वाली हैं it's gonna be winter soon। और it's little inconvenient to go to your house. थोड़ा दिक्कत होती है प्रभु आपके घर जाने में सर्दियों में। So love is expressed through obedience. प्रेम व्यक्त किया जाता है आज्ञाकारिता के द्वारा। Love makes obedience beautiful. प्रेम आज्ञा मानने को खूबसूरत बना देता है। Fear makes obedience ugly. भय या डर आज्ञा मानने को खतरनाक बना देता है, डरावना बना देता है। Jesus didn't say, if you don't obey me, डंडा मारूंगा तुझे. यीशु ने ये नहीं कहा अगर मेरी बात नहीं सुनी I will hit you with a rod। He said, if you love me, अगर मुझसे प्यार करते हो you will obey me. तब तुम मेरी बातें मानोगे। Amen? मैं So, imagine a cook in a restaurant which is crowded and he's cooking a dish for customers. कल्पना करें एक कुक है एक रेस्टोरेंट में और वो कस्टमर्स के लिए खाना बना रहा है। A delicacy that takes a lot of time. एक ऐसा खास खाना बना रहा है जिसको बड़ा टाइम Now लगता है। imagine a wife cooking the same dish for her husband. अब कल्पना करें कि एक पत्नी अपने पति के लिए वही डिश बना रही है। Takes the same amount of effort, उतना ही मेहनत लगेगी, takes the same amount of time, उतना समय लगेगा, but it's so different पर वो इतनी अलग होगी because she's motivated by love. क्योंकि वो प्रेम से प्रोत्साहित है। Love makes obedience look so beautiful. प्रेम आज्ञाकारिता को इतना खूबसूरत बना देता है। Amen? आमेन। So if I say that I love Jesus because he loved me first, अगर मैं कहता हूँ मैं यीशु से इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि पहले उसने मुझसे प्यार किया, then I will have evidence of love in my life. तो मेरी जिंदगी में प्रेम का सबूत भी होगा। Are you getting what I'm saying? You know, when I got saved, जब मैंने उद्धार पाया था, you know that when I got saved, God spoke to me through Jeremiah 31:3, and that was my foundation and will always be that my Father has loved me with an everlasting love. यिर्मयाह 31:3 से परमेश्वर ने मुझसे बात की थी जो कि मेरी नींव है और हमेशा रहेगी कि मेरे पिता ने मुझसे अनंत के प्रेम से प्रेम किया है। Amen? आमेन। And the Bible says we love him because he loved us first. और बाइबल कहती है हम उससे इसीलिए प्यार करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्यार किया है। Amen? So, do you want to love God? क्या आप परमेश्वर से प्यार करना चाहते हो? Fix your gaze on how much he loves you. तो अपनी निगाहें इस बात पर टिका दो कि वो आपसे कितना प्यार करता है। Meditate on this truth that I am loved by my heavenly Father. इस सच्चाई पर मनन करते रहो कि मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे बड़ा प्यार करता Come on, say this after me. I am loved by my heavenly Father. है। मेरे साथ कहे मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे बड़ा प्यार करता है। Say it again. I am loved by my दोबारा Father. कहे मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे बड़ा प्यार करता है। I am a disciple whom Jesus loves. मैं वो चेला हूँ जिससे यीशु बड़ा प्यार करते हैं। Amen? Amen. And as you meditate on this truth और जब आप इस सत्य पे मनन करोगे and you know how much the Father loves you, और आपको ये पता होगा कि कितना पिता आपसे प्यार करता है,
you will start to love him effortlessly. आप बिना मेहनत के उससे प्यार करने लगोगे. Amen. आमीन. See, I had a company of friends that were not very godly. मेरी ऐसी संगति थी दोस्तों की जो बहुत ईश्वरीय लोग नहीं थे. And my mom and dad, they were heartbroken, not happy that I was with them, and they used to tell me, but no change. और मेरे मम्मी पापा का दिल शोकित होता था कि मैं ऐसे दोस्तों के साथ उठता बैठता हूँ और वो मुझे बोलते थे पर मैं नहीं बदलता था. But when I got saved, और जब मैंने उद्धार पाया, the Lord, first time when Lord spoke to me, he said, leave your friends. पिता ने जो पहली बात मुझे कही वो ये थी कि अपने दोस्तों को छोड़. But because I had started to love Jesus so much, पर क्योंकि मैं यीशु से इतना प्यार करने लग गया था, it didn't even feel like a cost. I said, okay, Lord. मुझे लगा ही नहीं कि मैं कोई दाम चुका रहा हूँ. मैंने कहा ठीक है प्रभु. Just like that, I left my friends because my gaze was how much God loves me, so obeying him became so easy. और ऐसे करके मैंने अपने दोस्तों को छोड़ दिया पलक झपकते ही, क्योंकि उसकी ओर मैं देख रहा था और उसके प्रेम को अनुभव कर रहा था और बहुत आसान हो गया. Love makes obedience beautiful. प्रेम आज्ञाकारिता को खूबसूरती दे देता है. Amen. Because I knew I loved Jesus more than I love my friends, obeying him was easy. क्योंकि मैं जानता था कि मैं यीशु से ज्यादा प्यार करता हूं जितना अपने दोस्तों से करता हूं उससे, इसलिए उसकी बात मानना बड़ा आसान था. Love makes sacrifice a delightful offering. प्रेम बलिदान को एक आनंद से भरी हुई भेंट बना देता है. Let me say that again. Love makes obedience, a sacrifice, a delightful offering. प्रेम बलिदान को एक आनंद से भरी भेंट बना देता है. जब आपको किसी त्योहार में देना होता है कुछ पड़ोसी को किसी को, तो क्या करते हो आप? जो सोन पापड़ी आती है सब जगह से वो देते हो. When you have to give some sweets to a neighbor in festival season, you give the same box of sweets that comes from somewhere else. Is that true or not? है कि नहीं है? But when you अपनी बीवी को दोगे सोन पापड़ी, Will you उसके give it to birthday your में? wife on her birthday? But when you have to give a gift to somebody you love so much, जब आपको किसी को ऐसा गिफ्ट देना हो जब जिससे आप प्यार करते हो, you give them something that has costed you something that is so precious and costly because you love them. आप उनको कुछ ऐसा देते हो जो बड़ा ही कीमती हो, जिसका आपने दाम चुकाया क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो. And you are excited when you buy the gift. You're not like और आप बड़े उत्साहित होते हो गिफ्ट लेने के टाइम. दिल चुभ नहीं रहा तो आपके दिल में वो. The sting of paying the cost is not there when it is given out of love. दाम चुकाने का जो कांटा होता है ना, वो नहीं होता उसमें जब आप किसी से प्यार करते हो. Amen. आमीन. When I started to love Jesus, मैं चर्च में गया, पास्टर ने बोला दशवांश का समय है. मैंने दोस्त को बोला ये क्या होता है भैया दशवांश? उसने कहा अपनी सैलरी का 10% हम यीशु मसीह को देते हैं. जब मैं यीशु वो दिन सुना, उस दिन से आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई. मैंने केवल 10% यीशु मसीह ने, ज्यादा मांगेगा तो ज्यादा भी देंगे. जब मैं पहले दिन When you love him, obedience becomes a delightful offering. जब मैं चर्च गया तो पास्टर ने कहा दशवांश. मैंने दोस्त से पूछा, उसने बोला 10%. इफ इट्स जस्ट 10% I'll give more if Jesus asks. Because जब आप उससे प्यार करते हैं तो आपको देने में मजा आएगा. Amen. Because there's love of money, क्योंकि पैसे का प्रेम है and then there's love of Jesus. और यीशु से प्रेम है. और यीशु मसीह ने कहा तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते. And Jesus said you cannot serve both the masters. इसीलिए लोगों को प्रॉब्लम होती है ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट में. हमेशा बोलता अरे नहीं देना तो मत दो, ये स्क्रिप्चर के पीछे मत छुपो. That's why people have a problem, you know, Old Testament, New Testament. Don't give if you don't want to give. Don't hide behind scriptures. Amen. ऐसा हो नहीं सकता that the lovers of Jesus are not generous. This is not possible कि यीशु के प्रेमी उदार ना हो. Amen. This is not a giving message, okay? ये देने के बारे में संदेश नहीं. But love will make you a generous giver. लेकिन प्रेम करना आपको एक उदार देने You वाला बना देगा. cannot love Jesus and not become a generous giver. ये संभव नहीं कि आप यीशु से प्यार करते हो और उदारता से देने वाले व्यक्ति ना For हो. God so loved the world that he said, I love you world. Mwah, 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 mwah. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि कहा दुनिया में तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ. मामा.
No, the Bible says, for God so loved the world that He gave the most precious thing that He had. He gave His only begotten Son for us. पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो उसका सबसे कीमती खजाना था, अपने बेटे को उसने हमारे लिए दे दिया। Amen. जब यीशु मसीह ने मुझे बुलाया सेवा के लिए, नौकरी छोड़ने के लिए, मुझे नहीं पता था रोटी कहाँ से आएगी, बट बिकॉज I loved Him, it didn't even feel like that I'm sacrificing something for Him. It just became so delightful offering. When Jesus called me for ministry, I didn't know where the bread will come from, पर मेरे लिए वो एक आनंद से भरी भेंट हो गया उसके लिए। Amen. Are you guys with me? When we start to love the Lord, जब हम पिता से प्रेम करने लग जाते हैं, because He loved us first, क्योंकि पहले उसने हमसे प्यार किया, that will settle everything in your life. You will give, you will pray, you will fast, you will come to church, you will be a generous giver. Everything else is sorted when the first thing remains the first thing. इससे आप प्रार्थना करने लगेंगे, कलीसिया आने लगेंगे, देने लगेंगे, उसके बाद में सब कुछ अपने सही क्रम में आ जाएगा जब पहली चीज सही जगह पे होगी कि आप उससे प्यार करते होंगे। Amen. Have you seen a couple that loves? एक ऐसे कपल को देखा जो प्यार करते हैं एक दूसरे से। They love to talk. Nobody has told them किसी ने उनसे नहीं कहा you need to talk for 4 hours. कि आपको 4 घंटे बात करनी है। No, नहीं, because they love. क्योंकि वो प्यार करते They want हैं, to talk. इसलिए वो बात करना चाहते हैं। The day you start to walk in this love with Him, automatically you will start to talk to Jesus every day. जिस दिन आप उससे प्यार करने लग गए तो आप अपने आप उससे बात करना चाहोगे हर दिन। Amen. अभी जो स्क्रिप्चर्स हैं उसका पहला हमने 3-4 वर्ड पढ़े हैं. We have just read the I mean, like in this scripture we can go on for a week. It's so rich. इतना धनी है ये वचन, इसमें हम हफ्ते तक जा सकते हैं। कितने लोगों के यहाँ पे बच्चे हैं? How many people have children? Do you know how you taught your kids to love you? आपको पता है आपने कैसे सिखाया अपने बच्चों को देना? You start to love them first. आपने पहले उनसे प्यार किया। Now I'm teaching Judah. I say, Judah, मैं जूडा को सिखा रहा हूँ, कहता हूँ बोलो जूडा, I बोलो मैं love. प्यार करता हूँ You. आपसे। I've said it thousands of times. मैंने हजारों बार उससे बोला। And now he starts to say, अब वो बोलना शुरू हो गया। yeah. Because I am affirming that I love Him so many times, sooner or later, because He keeps hearing it, He will start to respond back, I love you. क्योंकि मैं उससे बार बार ये बात कहते रहता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ, आज नहीं तो कल वो भी ये बात दोहराने लगेगा कि वो मुझसे प्यार करता है। I pray every morning that you get up, hear the Father say this over you, my beloved son, my beloved daughter, I love you with an everlasting love. I will never leave you, never forsake you. मैं ये प्रार्थना करता हूँ हर रोज सुबह जब आप उठो तो आप पिता को आपसे ये बात कहते हुए सुनो कि मेरे प्यारे बेटे, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। Amen.